Good morning, students. Welcome to Shrived International School, and we will be resuming with the lesson second. We had a video session for yesterday also, and we will be continuing with the factors that were responsible for the First World War. वो reasons जिनकी वजह से First World War हुआ था. Okay. Now we learned about the first factor, that is economic factors. Now we will be learning about the second one, militarism. Now military force was necessary and important for the competition that the European nations got into for expansion. England, France, Austria, Russia, etc. had begun expanding their military power, while in countries like Japan, Italy, and Germany, compulsory military training had started. Production of weapons was increased under the pretext of self defense. Thus, militarism got an impetus and military competition added to economic competition, creating a serious atmosphere of war. Now what happened is कि इंग्लैंड जो था वो ऑलरेडी कॉलोनियलिज्म की वजह से फ्रांस को डोमिनेट कर रहा था. ठीक है, तो अब क्या होने लगा कि इंग्लैंड और फ्रांस का जो डोमिनेट जर्मनी ने तोड़ा था, तो मिलिट्री फोर्स वो लोगों ने अब बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था. मिलिट्री फोर्स एक नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट कंपटीशन हो गया था यूरोपियन नेशंस में. और खुद को एक्सपांड करने के लिए यूरोप ने क्या किया कि इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया, ये सब की तरह उसने भी अपना मिलिट्री पावर एक्सपैंड करना स्टार्ट किया, मतलब बढ़ाना शुरू कर दिया. जापान, इटली और जर्मनी में ऑलरेडी मिलिट्री ट्रेनिंग को कंपलसरी कर दिया था. प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स जो थे उसको बढ़ा दिया गया था, और वो लोगों ने ऐसा बोला था कि सेल्फ डिफेंस के लिए, खुद की कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए वो लोग ये वेपन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं. इस तरह से नाम देके उन्होंने वेपन के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया था. इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि मिलिटरिज्म जो था वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया था इन लोगों के लिए. एंड मिलिट्री कंपटीशन की वजह से इकोनॉमिक कंपटीशन बढ़ने लगा था, और ये भी एक वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट कर रहा था. थर्ड पॉइंट इज ग्रुपिज्म, सीक्रेट ट्रीटीज. Groupism and secret treaties played a major role in the First World War. The world was divided into two groups before the First World War. On one side was the group of Germany, Austria, Hungary, Bulgaria, and Turkey, while on the other side was the group of England, France, Russia, and Japan. A feeling of jealousy, enmity, mistrust, fear, and hatred evolved between the groups, which was an important factor of the First World War. अब ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट टेरिटरीज जो थी वो एक मेजर पार्ट प्ले कर रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए. वर्ल्ड टू ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका था बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगैन. वन साइड का जो ग्रुप था उसमें इंक्लूडेड थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया एंड टर्की जैसी कंट्रीज, और दूसरी तरफ का ग्रुप जो था उसमें थी कंट्रीज जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान. अब एक इन दोनों ग्रुप के बीच में एक जेलेसी का भावना थी. वो लोगों में एक दूसरे के लिए गुस्सा था, ट्रस्ट नहीं था उनको एक दूसरे पे, डर था कि कोई कंट्री हमको अटैक कर देगी, तो हेट्रेड था उनको, एक दूसरे के लिए नफरत पैदा हो चुकी थी इन दोनों ग्रुप्स के बीच में. और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इवोक हुआ था. फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म. The independence of Belgium and Greece and the unification of Germany and Italy were the result of nationalism. But later, the feeling of nationalism took an extreme and narrow form in Europe. Economic jealousies, competition, and colonialism in Europe had increased so much that the national interests of each other began to clash. Leading European nations began teaching extreme and destructive nationalism to its people. Love for own nation and hatred for the other nation was encouraged. The German chief Kaiser William was the other originator of nationalism and colonialism. He was overambitious and believed in the world leadership. He wanted to get things done according to his will with the help of his grand military power.
The feeling of war spread across other nations, as in Germany, and this had resulted in the First World War. A feeling of fierce nationalism, मतलब इंडिपेंडेंस था बेल्जियम और ग्रीस का, और एक यूनिटी था जर्मनी और इटली का। इसलिए ये दोनों जो कंट्रीज थी, ये मिलके एक रिजल्ट था नेशनलिज्म का, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ संयुक्त थे। लेटर ऑन, बाद में आगे चल के क्या हुआ कि ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, खुद के कंट्री के लिए कुछ कर देने की जो भावना थी, वो एक अलग लेवल पे चली गई, जिसकी वजह से यूरोप में उसका जो रूप था वो बदल गया। जेलेसी बढ़ने लगी, कंपटीशन बढ़ने लगे, यूरोप का जो कॉलोनियलिज्म था वो ऑलरेडी बढ़ रहा था, और वो इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि एक दूसरे की कंट्री के लिए जो करने की जो भावना होती है ना, वो क्लैश होने लगी, वो उसमें टकराव होने लगा। एक कंट्री को होता कि अरे इसने इतना अपनी कंट्री के लिए किया, तो दूसरी कंट्री को उससे ज़्यादा बढ़ के कर देने की इच्छा भावना चलने लगी। अब ये जो भावना थी वो एक अलग तरह के और रूप ले रही थी, जिसमें भेदभाव तो था ही, लेकिन गुस्सा ज़्यादा बढ़ने लगा था। वो एंगर, वो जेलेसी जो था, वो इट वॉज टेकिंग एन अनदर टर्न, जिसकी वजह से द कंट्रीज बिगैन टू क्लैश। लीडिंग यूरोपियन नेशंस थे जिनका एक एक्सट्रीम एंड डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म सामने आया। वो लोगों को फीलिंग जो था नेशनलिज्म का, वो डिस्ट्रक्टिव वे में बढ़ रहा था कि उनकी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए वो दूसरे की कंट्री के पीपल को डैमेज करने के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। खुद की नेशन के लिए उनको लव था और दूसरे की नेशन के लिए उनको हेटरेट था। अब ये फीलिंग जो थी, उनके जर्मन चीफ थे जिनका नाम था कैसर विलियम, वो उन्होंने इस भावना को और बढ़ावा दिया। उन्होंने नेशनलिज्म और कॉलोनिज्म को, हम कह सकते हैं कि उनकी वजह से ही ये सब शुरू हुआ था। वो बहुत ओवर एम्बिशियस थे और वो वर्ल्ड लीडरशिप में बिलीव करते थे। वो चाहते थे कि वो पूरे वर्ल्ड को लीड करें, तो वो हमेशा चाहते थे कि उनके हिसाब से सारी चीज़ें हों, और वो हर किसी को कंट्रोल करना चाहते थे। उनके पास बहुत सारा मिलिट्री पावर था उसके बेसिस पे। तो फीलिंग ऑफ वॉर जो था वो ऑलरेडी दूसरे नेशंस में स्प्रेड हो चुका था, और एज इन जर्मनी ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। वो लोग ऑलरेडी दूसरी जगहों को, दूसरी कंट्रीज़ को सरप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, और यही एक रीज़न भी था जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। Next is the role of newspapers. The newspapers of the European nations aroused so much of hatred among people with their mutual derogatory, provocative, exaggerated, and false write ups by spitting venom against rival nations that the rulers of the respective nations could not make efforts for establishing peace and harmony. Now, what newspapers did? Newspaper ने जो यूरोपियन नेशंस में और ज़्यादा हेट्रेट की भावना बढ़ाई, और ज़्यादा उन्होंने लोगों में गुस्सा बढ़ाया। उन्होंने क्या किया कि प्रोवोकेटिव, उकसाने वाले चीज़ें जो होती हैं वो टाइप की, लोगों को एग्जैगरेट किया। उन्होंने झूठी खबरें भी छापी, झूठे बयान भी दिए। जो दूसरी कंट्री ने कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाई है उसे गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया। डिरोगेटरी मतलब अपना कुछ अच्छा दिखा के, अपने कंट्री का अच्छा दिखा के दूसरी कंट्री के बारे में बुरा लिखना, इस तरह से उन लोगों ने लोगों को प्रोवोक करना स्टार्ट किया। दूसरी कंट्री के बारे में विमेन स्पीट करना, मतलब जहर उगलना स्टार्ट कर दिया। और राइवल नेशंस जो थे उनके नेशंस के बारे में गलत खबरें छापी, और ऐसे एफर्ट्स किए कि उन्होंने ऐसा दिखाया कि सिर्फ उनकी कंट्री, उनका नेशन जो है वो पीस चाहता है, वो हार्मनी चाहता है, वो सुख शांति चाहते हैं, और दूसरे नेशंस नहीं चाहते हैं। ऐसा गलत इंप्रेशन उन्होंने जानबूझ के क्रिएट करना स्टार्ट किया था। Philosophy about war. The policy of war is welfare took root in Europe. The German writer Trotsky published maxims like only the mighty deserve to live and war alone is the national need. Nietzsche, the German writer, expressed war as a sacred word. अब वॉर के बारे में जो फिलॉसफी थी ना वो चेंज होने लगी। लोगों के माइंड में ऐसा डाला गया कि वॉर ही एक लास्ट हमारे पास ऑप्शन है, वॉर से ही हमारा भला होगा, ऐसा लोगों के मन में डालने लगे वो लोग।
यूरोप ने बोला कि वॉर से ही भलाई होगी, वॉर इज़ वेलफेयर, ऐसा उन्होंने लोगों के मन में भरा। जर्मन राइटर जो थे उन्होंने ऐसा बताया कि जो सबसे बड़ा है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, उसे ही जीने का हक है, वही जिंदा रहेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होगा। वॉर अलोन इज़ द नेशनल नीड, अभी जो नेशन की नीड है वो है सिर्फ वॉर, अगर हम वॉर करेंगे तो ही हम सरवाइव कर पाएंगे। जर्मन्स ने बोला कि वॉर अगर होगा तो ये एक सेक्रेट वर्क की तरह, ये एक पुण्य का काम होगा, और इस तरह से उन्होंने गलत लोगों के मन में भावनाएं भरना स्टार्ट कर दिया। The Prince of Austria and his wife were assassinated by being shot at by member of Serbian terrorist organization Black Hand. Austria blamed Serbia for the involvement in the act and gave an ultimatum to hand over the culprit to Austria within 48 hours. Serbia declared it ignorant in the matter. Without listening to anything from Serbia, Austria declared war on Serbia. The First World War had begun with this. अब ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस थे और उनकी वाइफ थी, उनका मर्डर कर दिया गया था, उन्हें शॉट किया था मेंबर ऑफ सर्बियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका नाम था ब्लैक हैंड। एक ब्लैक हैंड नाम की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो सर्बिया में थी, और उन्होंने ऑस्ट्रिया के प्रिंस और उनकी वाइफ का मर्डर किया था उन्हें शूट करके। अब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को ब्लेम किया कि उनका इस एक्ट में इन्वॉल्वमेंट है, और उन्हें 48 आवर्स दिए कि आपको हम 48 आवर्स देते हैं, जिसने भी ये किया है आप हमें उसे हैंड ओवर कर दीजिए। लेकिन सर्बिया ने उनकी इस बात को अनसुनी कर दी, उसके मैटर को इम्पोर्टेंट नहीं दिया उन्होंने, और ऑस्ट्रिया ने भी सर्बिया की कोई भी बात सुने बिना उसके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब ये दोनों कंट्रीज़ का जो वॉर था ना, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बिगनिंग था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 24 nations supported the allied nations and 4 nations supported the axis nations. अब दो, जैसे ऊपर बताया, दो पार्ट्स में वर्ल्ड डिवाइडेड था, तो वो जो पार्ट्स थे, एक हुए एलिड नेशंस और एक हुए एक्सिस नेशंस। अब 24 नेशंस ने सपोर्ट किया एलिड नेशंस को और 4 नेशंस ने सपोर्ट किया एक्सिस नेशंस को। इनिशियली जर्मनी जो था उसने यूरोप के ऊपर बहुत ज़्यादा नोटवर्थी विक्ट्रीज हासिल की थी। उसने फ्रेंच आर्मी को टोटली रुइन कर दिया, ख़त्म कर दिया। द फ्रेंच आर्मी वॉज टोटली रुइंड। इट फॉट मैनी सबमराइन वॉर्स एंड डिस्ट्रॉयड द शिप्स ऑफ द एलिड नेशंस। उसने काफ़ी सारे सबमरीन वॉर्स भी किए और एलिड नेशंस की काफ़ी सारी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैनी सोल्जर्स एंड सिविलियंस डाइड बिकॉज ऑफ टैंक्स एंड पॉइजनस गैसेस। काफ़ी सारे सिविलियंस और सोल्जर्स जो थे उन्होंने सफ़र किया, उनकी डेथ हुई क्योंकि टैंक्स की वजह के थ्रू उन पर हमला किया गया था, पॉइजनस गैसेस भी छोड़े गए थे, जिसकी वजह से सिविलियंस की भी डेथ हुई थी। In 1917, the Russian Revolution started, so Russia withdrew from the war. Germany was very strong at this time. It managed to drown an American steamer, Lusitania, in which 147 American soldiers died. Consequently, America joined the Allied nations for the war in April 1917. With that, countries like Panama, Greece, Cuba, China, and Siam joined the Allied nations. Thus, the Allied nations became stronger. German army could not withstand the American troops. The whole position of the war changed. Bulgaria in September 1918, Turkey and Austria in October 1918 joined the Allied nations. The German leader Kaiser abdicated his position and ran away. Germany surrendered to Allied nation and signed a ceasefire treaty, and the war came to an end. Now, जब फ्रेंच आर्मी रुइन हुई और जर्मनी ने बहुत सारी सबमरीन्स के थ्रू अटैक किया, बहुत सारे सिविलियंस एंड सोल्जर्स भी इसमें डेड हुए थे। 1917 में रशिया ने इस वॉर से विड्रू कर लिया क्योंकि उन्होंने रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था। जर्मनी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि उसके बहुत सारी मिलिट्री ट्रूप्स के ऊपर कंट्रोल पाया था
एंड उसके पास अभी मिलिट्री पावर ज़्यादा था, सो इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम। इट मैन इसने इसने क्या किया, मिलिट्री पावर का यूज़ करके, अमेरिका की एक स्टीमर थी जिसका नाम था लुसिटानिया, उसमें 147 सोल्जर्स थे अमेरिकन, वो उसने डुबा दी, जिस उसको अटैक करके, जिसकी वजह से वो 147 सोल्जर्स जो थे उनकी डेथ हो गई। अब अमेरिका ने एलिड नेशंस को ज्वाइन किया अप्रैल 1917 में, और उसके साथ साथ पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना और सियाम ने भी एलिड नेशंस को ज्वाइन कर लिया। अब एलिड नेशंस जो थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, और जर्मनी आर्मी जो थी वो अमेरिकन ट्रूप्स के सामने ज़्यादा टिक नहीं पाई। तो जहाँ जर्मनी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था, वो पूरा वॉर्स पोजीशन चेंज हो गया, और अब अमेरिका के सामने जर्मनी को हार स्वीकार करनी पड़ी। इसकी वजह से सितंबर में 1918 में बल्गेरिया ने, और टर्की, ऑस्ट्रिया ने अक्टूबर 1918 में, ये लोगों ने भी हार स्वीकार मतलब एलिड नेशन को ज्वाइन कर लिया। अब जर्मनी का जो लीडर था केजर, उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी। उसने अभी तक जर्मनी को लीड किया हुआ था, वो वहाँ का लीडर बना हुआ था, लेकिन उसने वो पोजीशन छोड़ दी और वो वहाँ से भाग गया। फिर जर्मनी ने क्या किया कि उसने एलिड नेशंस को खुद को सरेंडर कर लिया, उसने अपनी हार स्वीकार कर ली, और एक सर्टिफिकेट, एक ट्रीटी साइन की, जिसके अंदर सीज फायर ट्रीटी जिसको बोलते हैं, और वो ट्रीटी साइन करने की वजह से पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो एंड हो गया, वो ख़त्म हो गया। इफ़ेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसके इमीडिएट इफ़ेक्ट्स क्या थे? डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटीरियल। Approximately 6.5 crore people took part in the war. At least 1 crore people died and 2 crore were injured, and around 70 lakhs were rendered permanently handicapped. More number of people died because of starvation and other forms of killings and epidemics that broke out after the war. The total war expenditure was quite high. अब मैन और मटेरियल का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। अप्रॉक्सीमेटली 6.5 करोड़ पीपल ने इस वॉर में पार्ट लिया था। मोर देन 1 करोड़ पीपल ऑलरेडी डेड थे, 2 करोड़ पीपल इंज्यूर हुए थे, 70 लाख पीपल ऑलरेडी हैंडीकैप हो चुके थे। ज़्यादातर जो डेथ्स हुई थी, इट हैपन बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। पीपल को फूड टाइम पे नहीं मिल पाया था, इस वजह से। एंड दूसरे किलिंग्स जो हुए थे वो अदर फॉर्म्स ऑफ किलिंग थे, लाइक मर्डर कर दिया हो, या अटैक की वजह से डेथ हो गई हो, पॉइजनस गैसेस की वजह से जो डेथ हुई हो, वो उस टाइप की किलिंग थी। और कुछ डेथ्स जो हुई थी वो एपिडेमिक्स की वजह से हुई थी, क्योंकि वॉर टाइप था, लोगों को दवाई वगैरह इतना टाइम पे नहीं मिल रहा था, तो काफ़ी सारी डिसीजेस ब्रोक आउट हुई थी, बीमारियां बढ़ गई थी, इसकी वजह से भी काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई थी। ओवरऑल अगर हम वॉर का खर्चा देखें तो वो बहुत ज़्यादा हाई था, इतना खर्चा भी हुआ था, ऊपर से नेशंस के नेशंस ख़राब हो गए थे, लोगों में, नेशंस के बीच में ट्रस्ट नहीं रहा था, बहुत सारे मासूम लोगों की भी जान गई थी। सोशल चेंज ड्यूरिंग द वॉर, सिंस मेजॉरिटी ऑफ द मैन of all nations were on the war front, women shouldered the responsibility of the family and occupation. They stepped out of their homes and successfully took over the responsibility in the different professional fields. The self-confidence of their being equivalent to the men enhanced. Consequently, the demand for women to exercise their franchise was raised. During the war, the production of things of basic necessity had reduced. So the problems like scarcity, unemployment, starvation, strikes, lockouts, etc. reached its head. People suffered a lot and children's conditions was pathetic. अब सोशल चेंज तो आया था, क्योंकि वॉर के ड्यूरिंग सारे जो मेन थे, मेजरली एवरी नेशन दे पार्टिसिपेटेड इन द वॉर, वॉट लेफ्ट आउट वॉज द वुमेन एंड द चिल्ड्रन। नाउ वुमेन्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था ऑक्यूपेशन रन करने का और घर चलाने का, सो द फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन पे था। सो वुमेन्स अब घर से बाहर निकली थी और उन्होंने सक्सेसफुली रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल किया था इन डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड्स। अलग अलग प्रोफेशन से उन्होंने काम करके अपनी फैमिली को चलाया था, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने निभाई थी।
सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था वो वुमेन्स का बढ़ गया था। उन्हें लगने लगा था कि जो फील्ड्स में मेन काम करते थे अब वो उनकी इक्विवेलेंट काम कर सकती हैं और सक्सेसफुली उसे हैंडल भी कर सकती हैं। कंसिक्वेंटली इसकी वजह से क्या हुआ कि वुमेन्स का अलग अलग फील्ड में डिमांड बढ़ने लगा। लोग चाहते थे कि जो वुमेन्स हैं वो ऑक्यूपेशंस को हैंडल करें, क्योंकि अब वो इसमें फ्रेंचाइजी हैंडल करने में एक्सपर्ट हो चुकी थी। लेकिन इसके साथ साथ नुकसान भी था कि प्रोडक्शन जो था नेसेसिटी आइटम्स का वो बंद हो चुका था। इसलिए प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगी, जैसे कि स्कैरसिटी, लोगों के पास जॉब नहीं था, लोग स्टार्व कर रहे थे, स्ट्राइक्स होने लगी थी, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थी तो लॉकआउट्स होने लगे और ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ने अपना सर उठाने लगी थी। मतलब ये प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी थी। पीपल बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, लोगों के पास पैसा ख़त्म हो चुका था, इंडस्ट्रियल सेक्टर ख़राब हो चुका था, प्रोडक्शन सेक्टर्स बंद हो चुके थे, पीपल स्टार्व कर रहे हैं, बीमारियों से लड़ रहे हैं। और इन सब के बीच में बच्चों की जो कंडीशन थी, चिल्ड्रंस की जो कंडीशन थी वो बहुत पथेटिक थी। उसके बारे में तो बात ही नहीं कर सकते, इतनी दयनीय स्थितियाँ खड़ी हो गई थी। द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो जून 1919 में हुई। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ जर्मनी इन द फ्रंट ऑफ एलिड नेशंस ब्रॉट टू एन एंड ऑफ द वार। अब जर्मनी जो ट्रीटी साइन की थी एलिड नेशंस के साथ में मिलके, और उन्होंने जो सरेंडर किया था उसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। Then allied nations undertook the peace process in Paris, in which some 58 commissions were formed and 145 sessions were organized. The agreement made with Germany during the Paris peace process was made in the Mirror Palace at Versailles. अब allied nations ने क्या किया, सबने मिलके पेरिस में एक पीस प्रोसेस स्टार्ट किया जिसके अंदर 58 कमीशंस बनाई गई थी और 145 सेशंस इसके ऑर्गेनाइज हुए थे, जिसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया था कि दुनिया भर में कैसे वो लोग शांति मेंटेन कर सकते हैं और वॉर को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट जो जर्मनी में हुआ था उसमें पेरिस पीस प्रोसेस के अंदर जर्मनी के साथ उन्होंने एक डील साइन की थी और वर्सलिस के मिरर पैलेस में इसको साइन किया गया था और इसलिए उसे वर्सलिस ट्रीटी का नाम दिया गया था। देयर वर 4 प्रोविजंस इन द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। 4 प्रोविजंस उन्होंने बनाए थे। पहला था रीजनल अरेंजमेंट, सेकंड वाज रिडक्शन इन ट्रूप्स एंड डिसआर्मामेंट, थर्ड वाज अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स एट मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच प्रेसिडेंट gains at the end of war and war fine. 4 was other provisions. The American President Woodrow Wilson, British Prime Minister Lord George, French Prime Minister Clemenceau and Italian President Orlando played an important role in this treaty. अब उन्होंने जो ट्रीटी साइन की थी उसके 4 मेन पार्ट्स थे कि वो लोग रीजनल अरेंजमेंट करेंगे, दूसरा था कि सबको अपनी आर्मी की ट्रूप्स में कमी लानी होगी और डिसआर्मामेंट करना होगा, जितना ज़रूरत है उतना ही आर्मी के पास जो वेपन्स है वो रहेगा, बाकी को वो लोगों को सबमिट करा देना है या डिसोन कर देना है। अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स एट द एंड ऑफ द वॉर एंड वॉर फाइन। अब वो जो वॉर फाइन लोगों ने भरा है या तो जो भी मिला है उनको वॉर के टाइम पे, उसको सबको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबका कुछ ना कुछ हिस्से में आ पाए। थोड़े और दूसरे प्रोविजंस उन्होंने किए थे। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच के प्रेसिडेंट क्लेमेंको और इटालियन प्रेसिडेंट ऑर्लैंडो, इन्होंने इस ट्रीटी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था इस ट्रीटी को सक्सेसफुली प्लान आउट करके उसे साइन करवाने के लिए। जर्मनी जो था उसको इस वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था, ऐसा उसे कहा गया था कि आपकी वजह से ये वॉर हुआ है। A war fine of 6.5 billion pound was imposed on Germany. जर्मनी के ऊपर 6.5 बिलियन पाउंड का वॉर का जुर्माना डाला गया। इसकी वजह से उसको अपना रूर रीजन जो था वो फ्रांस को दे देना पड़ा। राइन रिवर जो थी इंटरनेशनल सी रूट के लिए ओपन कर देनी पड़ी। राइनलैंड जो था अब वो फ्रेंच बॉर्डर पे था और इसलिए उसने
डिसअलाउ कर दिया था कि कोई भी फोर्ट्रेस एज वेल एज मिनरल रिच रीजन जो है वो उसे फ्रांस को 15 साल के लिए दे देना पड़ा था। मोस्ट ऑफ द जर्मन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फिस्केट कर दिए गए थे, मतलब उनको हटा दिया गया था और उनके दूसरे कंट्रोल्स उनको डाल दिए गए थे। एल्सेक एंड लॉरिन वो दोनों फ्रांस को रिटर्न कर दिए गए थे। इसके अलावा जर्मनी was to give France and other allied nations a large quantity of coal and iron annually as the benefits of war। अब जर्मनी को काफ़ी साल तक आयरन और कोल का बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन जो है वो फ्रांस और दूसरे एलिड नेशंस को देना पड़ेगा, सो दैट वॉर की वजह से जो फ्रांस वगैरह को नुकसान हुआ है वो उनको बेनिफिट में मिल सके। इस वजह से जर्मनी पे ये सारी चीज़ें थोप दी गई थी। जर्मनी को ये सारी चीज़ें टर्म्स और कंडीशंस एकदम गन पॉइंट पे साइन करवाई गई थी, मतलब फोर्सिबली साइन करवाई गई थी। इसकी वजह से जर्मन्स को बिटरनेस और डिससेपरेशन की भावना उनके अंदर आ गई थी। उनको ऐसा लगने लगा था कि वॉर तो सभी कंट्रीज़ के बीच में हुआ था, लेकिन एक अकेले के ऊपर सारी चीज़ें थोप दी गई थी और उनके साथ अच्छा नहीं हुआ है। उनको ऐसा लगने लगा कि उनके साथ सारी चीज़ों के लिए सिर्फ अकेले को रिस्पॉन्सिबल डाल दिया गया है और उनके साथ सबने मिलके गलत किया है। ये बिटरनेस की भावना उनके अंदर आ गई थी। कॉन्सिक्वेंटली ये सारी चीज़ें जो जर्मनी पे डाली गई थी, जर्मनी इकोनॉमिकली फेल हो गया और वो फेल हुआ बहुत मिसरेबली, बहुत बुरी तरह से उसकी हालत ख़राब हो गई। Long term effects: there was a feeling of revenge in signing the treaty with the nations that were defeated in the war. Peace could not be established with the treaty. Socialist Russia was not given a place in the League of Nations. America did not join the League of Nations. That's why it can be said the reason for the Second World War was in the peace process of the First World War itself. अब इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या आया था कि ऑलरेडी जर्मनी में तो रिवेंज का भावना आई गई थी, क्योंकि उनके साथ जो ट्रीटी साइन की गई थी दैट वाज ओनली ऑन द वन साइड एंड उनको कोई कंट्री से सपोर्ट नहीं मिला था। जो भी कंट्रीज डिफीट हुई थी उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया था। पीस की ट्रीटी जो है वो प्रॉपरली एस्टैब्लिश नहीं हुई थी। सोशलिस्ट रशिया जो था उसको लीग ऑफ नेशंस में कोई प्लेस नहीं दिया गया था। अमेरिका ने भी लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन नहीं किया था। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत थी ना, वो ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो ट्रीटी साइन हुई थी उसने जो शांति बनाने की प्रोसेस स्टार्ट की थी, ऑलरेडी इस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने की तैयारियां शुरू हो गई थी क्योंकि जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को एंड करके पीस प्रोसेस को स्टार्ट किया था वो प्रॉपर वे में नहीं